मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बिरंजीत सिन्हा जी से अनुरोध करती हूं कि वो संक्षेप में आपको इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ बताएं। সবাইকে নমস্কার, সাংবাদিক বন্ধুদের নমস্কার। এবং আজকে ভারত জোড়ো যাত্রার যে প্রেস কনফারেন্স আমরা আহ্বান করেছি, এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আমাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সেক্রেটারি, ত্রিপুরার ইনচার্জ ম্যাডাম সারিতাজি, আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন বিধায়ক তথা প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সিএলপি লিডার সুদীপ রায় বর্মন সাহেব, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন মন্ত্রী বিলাল মিয়া সাহেব, এবং আমাদের পিসিসি জেনারেল সেক্রেটারি স্পোক্স পারসন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। এরপর আর দাইনে বসে আছে আমাদের মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়দুল হোসেনজি, এবং আমার এবং উনি ভারত জুড়ো যাত্রার কোঅর্ডিনেটর জয়দুল হোসেন, এবং আমার বাঁ দিকে বসাদ আছেন আমাদের কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা শ্রী আশিস শাহজি, যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, সেবা দলের প্রেসিডেন্ট এবং মহিলা কংগ্রেসের ইনচার্জ এবং এনএসওয়াই প্রেসিডেন্ট সম্রাট রায়, এবং আদিবাসী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জিতেন দেববর্মা, এসসি চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস সহ আমাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রধানগণ। আজকের এই দিনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে ভারতের সবকটি রাজ্যের রাজধানীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারত যাত্রার বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আমরাও তার অঙ্গ হিসাবে এই কংগ্রেস ভবনে প্রেস কনফারেন্স করে ভারত জোড়ো যাত্রার কেন করা হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে আমরা এখানে বিশ্লেষণ করব। আমি সংক্ষিপ্ত বলবো, ম্যাডাম ডিটেলস বলবেন কেন আমরা ভারত জোড়ো যাত্রা করা লাগছে। দেশে যে শাসকটি আছে কেন্দ্রে, ওদের আদর্শ হচ্ছে ধর্মান্ধ, ভারতের আদর্শের পরিপন্থী। ভারতের মেইন আদর্শ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ। আজকে ধর্মনিরপেক্ষ বিপন্ন হয়ে গেছে, যেহেতু একটা ধর্মান্ধ ভারত শাসন করছে। দেশের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে বেরোজগার, বেকারত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে সারা দেশে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এর মধ্যে বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আছে আকাশ ছোঁয়া, মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনেক চিন্তা করে, অনেক মন্থন করে কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছেন যে ভারত জোড়ো যাত্রা। কারণ ভারতের একমাত্র দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতের মূল আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে চলে। কংগ্রেস একটা দায়িত্বশীল নির্ভরশীল দল। দেশের এই দুর্দিনে কংগ্রেস ভারত জোড়ো যাত্রা অ্যানাউন্স করেছে। 7 তারিখে সেপ্টেম্বরে সর্বধর্ম পাঠ হবে প্রত্যেকটা রাজ্যের হেডকোয়ার্টারে, এবং আমাদের এই কংগ্রেস ভবনের সামনে সর্বধর্ম পাঠ করা হবে সকালবেলা।
বিকাল 4:15 সর্বধর্ম পাঠ করা হবে। এবারে বিকাল 5টায় লাইভ স্ট্রিমে আমরা দেখানো হবে বাইরে, কংগ্রেস ভবনের বাইরে। এবং রাহুল গান্ধীর পদযাত্রার সূচনা করছেন 8 তারিখে উনি স্টার্ট করবেন পদযাত্রা। ওনার নেতৃত্বে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীরা, অনুরাগীরা সকাল 7টা থেকে শুরু করবে। এই দিন আমরা আগরতলা শহরে কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে 7:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত আমরা ভারত জোড়ো যাত্রা সূচনা করব। রাজ্যের সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রেও অনুরূপভাবে পদযাত্রা করবে। সেই জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি এবং সমস্ত রাজ্যের সবকটি কংগ্রেসের কমিটিগুলো তৈরি হচ্ছে। এবং ভারত জোড়ো যাত্রার বিশ্লেষণ করবেন আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি সারিতা মেজামদি। আমি অনুরোধ করব ওনাকে ওনার বক্তব্য পেশ করেছেন। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, इस महंगी सरकार का कब तक बोझ संभाला जाए। आओ इसे हकाला जाए, आओ इसे निकाला जाए। इस महंगी सरकार का कब तक बोझ संभाला जाए। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि कमर तोड़ महंगाई को नियंत्रण करने में ये भाजपा सरकार विफल रही है और इसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 4 सितंबर यानी गतकाल, बांग्ला में गतकाल बोलते हैं, रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोलकर रैली किया गया। इस बार भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम इसका अगला कदम उठाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में सब बताती हूँ। थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। आज के समय में इस यात्रा की बेहद ही आवश्यकता थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों को समृद्धि का सपना दिखाया था। इसके विपरीत उन्होंने पिछले 8 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और ध्वस्त होती संस्थाओं का एक भयानक अनुभव दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। पहली, आर्थिक विषमताएं, दूसरी सामाजिक ध्रुवीकरण, तीसरी राजनीतिक केंद्रीयकरण। इन तीनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से मिलेंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस पद यात्रा में होगा क्या। इस पद यात्रा के डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। इस पद उद्देश्य है कि सबसे पहले सभी भारतीयों के बीच एकता कायम करना, जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान में प्रतिबिंबित मूल्यों में विश्वास रखते हैं। दूसरा, आर्थिक विषमताओं, सामाजिक विभाजन और अत्याधिक राजनीतिक केंद्रीयकरण से बुरी तरह प्रभावित करोड़ों भारतीयों की आवाज उठाना। तीसरा, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लोगों के साथ मुद्दों और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करना।
और चौथी, अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक समरसता कर को मजबूत करना। कार्यक्रम इस तरीके से होगा। 7 तारीख को कार्यक्रम तमिलनाडु में शुरू होगा। सवेरे 7 बजे श्री पेरम्बदूर में राहुल जी श्री राजीव गांधी जी के मेमोरियल में वहाँ पे होमेज देंगे। 3 बजे से 4 बजे तक राहुल गांधी जी वहाँ पे वल्लुवर मेमोरियल में और फिर उसके बाद विवेकानंद मेमोरियल और कामराज मेमोरियल में जाएंगे। करीबन 4 बजे वहाँ पर एक प्रार्थना सभा होगी जो महात्मा गांधी मंडपम में किया जाएगा। इस मीटिंग के बाद वहाँ पे उनको राष्ट्रीय ध्वज दिया जाएगा श्री राहुल गांधी जी को, और उसके बाद राहुल गांधी जी शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक उसी मंडपम, गांधी मंडपम से बीच रोड तक पद यात्रा करेंगे और भारत जोड़ो पद यात्रा को फॉर्मली लॉन्च करेंगे। अगले दिन जो है 8 तारीख सवेरे 7 बजे विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक ग्राउंड अग्नातीस्वरम कन्याकुमारी से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। हर रोज ये यात्रा प्रातः 7 बजे से सवेरे 10 - 10:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद बीच का जो समय है उसका मैं डिटेल्स आपको दे रही हूँ। फिर शाम को 3:30 से 6:30 बजे करीबन फिर पद यात्रा की जाएगी। सवेरे जो पद यात्रा किया जाएगा उसमें पूरे भारतवर्ष से 118 लोग जुड़े हैं और इनमें से 31 महिलाएं हैं और 3570 किलोमीटर 150 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। इसमें 12 प्रदेश होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पदयात्रा को कंप्लीट किया जाएगा। हमारे जितने भी पदयात्री हैं 118 जन पूरे समय 150 दिन के लिए ये पदयात्रा में चलेंगे। इसके अलावा 2 और पदयात्रियों का किया गया है जो है प्रदेश पदयात्री और अतिथि पदयात्री। जो अतिथि पदयात्री हैं या फिर अतिथि यात्री हैं वो लोग जैसे बोलिए त्रिपुरा से, मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या फिर जो स्टेट्स में यात्रा नहीं पहुंच पा रही है वहां से हम लोग जाकर इस पद यात्रा में जुड़ेंगे। और जो प्रदेश यात्री हैं वो हर एक प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं और इस सरकार की विफलता के खिलाफ लड़ना चाहता है, उनको जुड़ने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा साइमल्टेनियसली भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा प्रदेश में, स्टेट कैपिटल में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में इनका पदयात्रा किया जाएगा हर रोज सवेरे 7 बजे से 10:30 बजे तक। हमारे जो 12 स्टेट्स हैं मैं इसके डिटेल्स आपको दे देती हूँ। 3 दिन तमिलनाडु में, 18 दिन केरल में, 21 दिन कर्नाटका में, 2 दिन आंध्र प्रदेश में, 13 दिन तेलंगाना में, 16 दिन महाराष्ट्र में, 16 दिन मध्य प्रदेश में, 3 दिन उत्तर प्रदेश में, 2 दिन राजधानी नई दिल्ली में, 21 दिन राजस्थान में, 2 से 3 दिन पंजाब में, 3 दिन हरियाणा में और 2 से 3 दिन कश्मीर में। कुल 150 दिन का ये पूरा यात्रा रहेगा। इस यात्रा में 3570 किलोमीटर कवर की जाएगी और इसमें पूरी तरीके से श्री राहुल गांधी हमारे भारत यात्रियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये पूरा यात्रा पूरा करेंगे। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होगा
कि क्यों गुजरात और हिमाचल में यात्रा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर हम कन्याकुमारी से गुजरात या फिर हिमाचल पहुंचने की कोशिश करें तो हम इलेक्शंस तक पहुंच नहीं पाएंगे। कम से कम हमें 90 दिनों की जरूरत पड़ेगी ये पदयात्रा कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए ये यात्रा प्लान करने से पहले 5 पॉसिबल रूट्स को रेकी किया गया था और बहुत सारे इश्यूज थे जिसके कारण हम बहुत सारे स्टेट्स के माध्यम से या फिर स्टेट्स के बीच से हम जा नहीं पाए। बहुत सारे एरिया में ज्योग्राफिकल इश्यूज था, बहुत सारे एरिया में सिक्योरिटी के इश्यूज थे, कन्वीनियंस के इश्यूज थे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और लॉजिस्टिक इश्यूज भी थे। जैसे बहुत लोग बोल रहे कि हम छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं जा रहे। छत्तीसगढ़ से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो पहला रूट था वो बस्तर होके जा रहा था और वहां में सिक्योरिटी इश्यूज है, इसलिए पदयात्री वहां से गुजर नहीं पाएंगे। राहुल जी का ये मानना है कि ये जो पदयात्रा है ये एक तपस्या है हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और इस तपस्या को आगे लेके जाने के लिए ये जो पदयात्रा है ये पूरी तरीके से सिर्फ एक पदयात्रा ही होगी, ना कि बीच में आप कहीं में बस में बैठ गए या फिर नाव से चले गए या फिर बस से चले गए, ये नहीं होगा। ये पूरा पदयात्रा पद से ही चला जाएगा और चल के ही ये 150 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है जैसे 2 तारीख अक्टूबर और भिन्न भिन्न जो महत्वपूर्ण दिन है वो सब दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। जो भी स्टेट होगा वहीं पर पीसीसी के साथ, प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर वो कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी पूछना है कि ये पदयात्रा क्यों इसको क्यों प्योर पदयात्रा बोला जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये हाइब्रिड पदयात्रा क्यों नहीं है। ये हाइब्रिड पदयात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे समय ये जो पदयात्रा है ये चलकर ही कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रदेश हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल और भिन्न भिन्न जो अलग स्टेट्स हैं जहां पर ये पदयात्रा नहीं हो रही है, जैसे हमारे त्रिपुरा में भी नहीं हो रहा है। हम सब इस पदयात्रा को अपने स्तर पे प्रदेश में इस पदयात्रा को आगे लेकर जाएंगे और इस पदयात्रा को सफल बनाएंगे। हर दिन सवेरे 7 से 10:30 बजे तक 15 किलोमीटर कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद 3:30 से 6:30 बजे 8 किलोमीटर कंप्लीट किया जाएगा। पर डे 22 to 23 किलोमीटर्स कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा जो बीच का जो समय है इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से ये आगे लिया जाएगा। पहले सवेरे का जो 7 से 10:30 बजे का है, उसके बाद ब्रेक होगा थोड़ी देर ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद में यात्रा चौपाल किया जाएगा। उसके बाद डिनर है कैंप में और फिर उसके बाद पीरियोडिक इवेंट्स होते रहेंगे जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, कल्चरल इवेंट्स है, अलग अलग समाजों के साथ मिलना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए। राहुल जी ने इस बार इस बात को बहुत सीरियसली ठाना है कि इस बार हम इस सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इस बार हम लोगों के बीच जाएंगे, उनके जो समस्याएं हैं वो हम सुनेंगे और आज पूरे भारतवर्ष में 27 प्रदेशों में ये नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ किया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अगर लाइव फीड्स चाहिए होगी भारत जोड़ो यात्रा की, ये हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है और पूरी यात्रा 150 दिन लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हर एक मीटिंग लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और पूरा पद यात्रा जहां पे राहुल गांधी जी, भारत यात्री, अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री चलेंगे, वो पूरा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जो पद यात्रा तमिलनाडु में स्टार्ट होगा
पहले दिन करीबन 25,000 लोग जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। बोल रहे हो प्रश्न नहीं है? This is starting from other states. Some of the states must not be Congress dominated states also. As you say, you are concerned about the security. And what type of threat perceptions are? देखिए, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पदयात्रियों का चलना बहुत ही मुश्किल होगा, जैसे बस्तर एरिया मैंने बोला आपको, चाहे वहां पे कांग्रेस शासक ही हो, पर बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज भी होते हैं। जंगल है, घने जंगल है, उसके बीच से जो रास्ता है या फिर जो पथ है वो जा नहीं सकता। अभी हम लोग जब लॉन्च करेंगे, आप जब भारत जोड़ो यात्रा का जो आप पथ देखेंगे वो बिल्कुल सीधा है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो आप देखोगे कि लॉजिस्टिकली 5 बार पूरे भारतवर्ष में रेकी किया गया और ये ही एक परफेक्ट रूट निकला है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन में पद यात्रा कर सभी को लेकर हम कंप्लीट करेंगे। मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष बीरजीत सिन्हा जी, माननीय विधायक सुदीप बर्मन जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष बिलाल जी, हमारे पूर्व विधायक आशीष शाह जी, हमारे भारत जोड़ो अभियान के कोऑर्डिनेटर जैदुल हुसैन जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राखू जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष नित्य गोपाल जी और हमारे महिला कांग्रेस के इंचार्ज मैत्री जी से अनुरोध करूंगी, और हमारे एनएसयूआई और सम्राट हमारे एनएसयूआई प्रेसिडेंट, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आज एसटी चेयरमैन यहाँ पे उपस्थित है, हमारे एससी चेयरमैन भी उपस्थित है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आए और एक साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। दादा आइए जी। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা আপনারা সবাই থ্যাংক ইউ কারো কোনো প্রশ্ন নাই তো? No, today we are completely confined within this chapter. We don't want to mingle up anything else. भारत जोड़ो अभियान लेके भारत जोड़ो यात्रा पूछ लीजिए। আবার লাগবো তো এটা আবার রাখো ওই অফিসে, ম্যাডামের অফিসে। Any question related to Bharat Jodo? এই অফিসে রাখি দেও জয়দল, Please, জয়দল ওই অফিসে রাখি দেও। আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে এই সম্পর্কে, ভারত জোড়ো অভিযান সম্পর্কে, পদযাত্রা সম্পর্কে ওনাকে চিঠি লিখে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। নিশ্চয়ই পুলিশ প্রশাসন এটার গুরুত্ব
এবং উপলব্ধি করে নিশ্চয়ই আমরা তো এই প্রত্যাশাই রাখবো, গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালের অধিকার রয়েছে দলীয় কর্মসূচি পালন করার। নিশ্চয়ই আমরা করব, পুলিশ প্রশাসন সেটা সুনিশ্চিত করবে। প্রত্যেক দিন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রোগ্রাম থাকবে, সেটা পুলিশ এবং প্রশাসন তার দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা করব, এখন এরা এদের দায়িত্ব পালন করবে কি না করবে এই জায়গা থেকে তো আমরা বলতে পারছি না। ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ উইল গো অ্যাহেড উইথ দিস প্রোগ্রাম হোয়াট এভার দ্য কনসিকুয়েন্সেস মে বি। আমরা এই প্রোগ্রামটা কর্মসূচিটা আমরা বাস্তবায়িত করব। সে পুলিশ তার ব্যবস্থা রাখলো কিনা, পারমিশন দিল কিনা, অলরেডি উই হ্যাভ অলরেডি ওয়েল ইন অ্যাডভান্স আমরা জানিয়ে দিয়েছি। এখন তারা কি করবে না করবে ইট ইজ আপ টু দেম, বাট উই উইল ক্যারি অন উইথ আওয়ার প্রোগ্রাম, দ্যাট ইজ ফর ফাইনাল। অনুমতি না দিলে কি করবে? কিসের অনুমতি? পুলিশের যে It is our democratic right. এটা অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম। It all India, no, apart from all India program, who is going to prohibit us from organizing our party programs? এটা আপনাদের অভিযোগ বা বিরোধী দলের অভিযোগ? আমরা দিয়ে রেখেছি, এখন এরা কি দেবে কি দেবে না, that is up to them, but we will carry on with our programs. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। मैं त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतनी प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वह उतनी खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो ये है हमारी संघर्ष की कहानी हमारा संकल्प और ये हमारा संकल्प है। और मैं पूरा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि भाजपा की भारत तोड़ो नीति से नाता तोड़ो और कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से रिश्ता जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। আপনি জানেন হয়তো যে রাজ্যে জেপি নাড্ডা এসেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে বিজেপির যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি আজকে এই ব্যানারে আমি এই প্রশ্নটার আমি নেব না, আপনি আলাদাভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করুন অন্য জায়গায়, নিশ্চয় উত্তর